Hello students, so today we will discuss about the third unit of community health nursing, that is epidemiology. So let's begin the topic. Introduction of epidemiology. What is epidemiology? First we have to discuss about it. The Greek physician Hippocrates is sometimes said to be the father of epidemiology. He is the first person known to have examined the relationship between the occurrence of disease and environmental influences. The epi means on, upon, befall. Demo means people's population or men. Logy means to study. So first we will discuss about what is introduction of epidemiology. What is epidemiology is? So it is the Hippocrates. The Hippocrates is one of the great physician. The great Greek physician is the Hippocrates. So he said he is the father of epidemiology. ओके एपिडेमियोलॉजी इज़ द फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी. कौन? हिप्पोक्रेट्स जो है वो फादर है एपिडेमियोलॉजी का. उसने ये एग्जामिन करा था जो रिलेशनशिप है डिजीज़ कैसे अकर होती है ओके विथ द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस. उसमें एनवायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है ओके. अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस हिप्पोक्रेट ने ये बताया कि कैसे एपिडेमियोलॉजी भी रोल प्ले करती है रिलेशनशिप में ओके एंड एनवायरमेंट के साथ इन्फ्लुएंस होके मतलब एनवायरमेंट क्या असर दिखाता है कोई भी रिलेशनशिप्स को लेकर ओके. सो द इंट्रोडक्शन इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट, definition of epidemiology. So what is definition of epidemiology? The study of frequency, distribution and determinants of disease is called as epidemiology. So what is epidemiology? According to International Epidemiological Association, epidemiology क्या है? एक ऐसी स्टडी है जो कि फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़ की क्या फ्रीक्वेंसी चल रही, कितने रेंज में चल रही, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ओवरऑल कैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है स्टार्टिंग टू एंड उसकी डिटर्मिनेंट्स क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हेल्थ को डिटरमाइन कर रही है, जो चीज़ इन्फ्लुएंस हो रही है उससे okay. So this is all about definition according to International Epidemiological Association. Next, keywords of epidemiology. So there are some keywords, let's discuss them one by one. First, epidemic. What is epidemic? Epi means upon, demos means people. Wherever demos come, like democratic India, democratic, demo means people. Okay, for example, democratic means demo means people. So demos indicated as people, and then an आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ इन कम्युनिटी इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन. क्या नॉर्मल एक्सपेक्टेशन में जो आउटकम आ रहा है ठीक है तो वो एपिडेमिक आता है. एपिडेमिक का मीनिंग है. नेक्स्ट है एंडेमिक. ओके, एंडेमिक एन इज रेफर एज इन एंड डेमोस सेम पीपल. सो द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज विद इन अ जोग्राफिकल एरिया, द यूजुअली प्रेवलेंस ऑफ डिजीज ऑन द पर्टिकुलर एरिया. ओके, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि ऐसी डिजीज़ जो कॉन्स्टेंटली अकर हो रही है एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में ओके जिसका प्रिवलेंस रेट जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित है, जैसे कि मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस ओके. ये स्प्रेड नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह से ओके एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में स्प्रेड नहीं होती है ओके. द लास्ट वन इज़ पेंडेमिक. Pan means all. Okay, wherever the pan word is come, it's mean all. Okay, so pan means all. Demos mean peoples. Okay, demos means same people. An epidemic which spread from country to country or over the whole world. Okay, so this is the type of disease which is influences the people by country to country. Okay, so country से country spread हो रही है. जैसे for example है recent epidemic of AIDS. Okay, AIDS का recent epidemic, जैसे अपन अभी recently example ले सकते हैं कोरोना वायरस का. Okay, so कोरोना वायरस क्या है country to country spread हो रहा है. So it is an pandemic disease. Pandemic epidemiology में. So the latest example of pandemic is coronavirus. Okay, so this is all about keywords. So let's move on to the next topic, that is aims of epidemiology. What is the basic aims of epidemiology? Let's discuss. First point, to describe the distribution size of disease problems in the human population. Okay, so
पूरा अपन को डिस्क्राइब करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, साइज़ कितनी है, मतलब साइज़ क्या है पॉपुलेशन की, और कैसे धीरे धीरे डिजीज़ अकर हो रही है उस पूरे पॉपुलेशन एरिया में। नेक्स्ट पॉइंट, टू आइडेंटिफाई इटियोलॉजिकल फैक्टर्स इन द पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज़। ओके, जो भी पर्टिकुलर डिजीज़ है उसका क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो वो डिजीज़ को बढ़ा रहे हैं। अगर अपन को उन फैक्टर्स का पता चल गया तो उन फैक्टर्स से अपन होने वाले डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सो the basic thing is in the second point. So the last point, to provide data essential to the planning, implementation and evaluation of services for the prevention, control and treatment disease and to set up the priority among these services. Okay, so उन सब का अपन वो डेटा इकट्ठा करके अपन उस चीज़ में प्लानिंग कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और ओवरऑल पूरा इवेल्युएट कर सकते हैं कि प्लान सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग अपन प्रॉपर कंट्रोल दे सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं उस पर्टिकुलर डिजीज़ का अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी और सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट, so this is all about AIIMS. So next topic is uses of epidemiology. So epidemiologist क्यों important है, ओके क्यों अपन इसके बारे में बार बार epidemiology के बारे में पढ़े, स्टडी करें। ओके, so the first point is to study the effect of disease state in the population over a time and predict future health. ओके, ताकि अपन डिजीज़ कंडीशन के बारे में स्टडी कर सकें जो स्टेट बाय स्टेट या पैंडमिक डिजीज़ हो रखी है, ठीक है, ओवरऑल पॉपुलेशन को डैमेज कर रही है, तो उन डिजीज़ के बारे में अपन फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकें कि वापस आई डिजीज़ तो उसका ओवरकम अपन कैसे करेंगे। तो एपिडेमियोलॉजी क्या करता है, ओवरऑल डिजीज़ कंडीशन को नॉट ओनली वन पर्सन पर्टिकुलर, नॉट ओनली लोकेलिटी, एक पर्टिकुलर ओवरऑल कंट्री का ये फ्यूचर प्रिडिक्शन करता है। सो दिस इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, टू डायग्नोस द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। ओके, कम्युनिटी हेल्थ को प्रॉपरली डायग्नोस करता है। नेक्स्ट पॉइंट, टू इवेल्युएट द हेल्थ सर्विसेज, जो भी हेल्थ सर्विसेज कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रोवाइड कर रही है उस सर्विसेज का पूरा इवेल्युएशन देता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टू एस्टिमेट द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, जो भी इंडिविजुअल ने एक्सपीरियंसेस करें वो सबको वो एस्टिमेट करता है कि पहले कितने जने थे मोर्टेलिटी मोबिडिटी रेट में और अब कितने हुए हैं, फॉर एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई द सिंड्रोम, जो भी सिंड्रोम है उसको आइडेंटिफाई करना, भाई कितने पीपल्स को हुआ है, कितने लोकेलिटी में हुआ है, कितनी कंट्री बाय कंट्री अफेक्ट हुई है उससे। ओके, द लास्ट पॉइंट इज टू सर्च द कॉज ऑफ डिजीज़, द मेन थिंग इज दिस, उसका कॉज पता करना डिजीज़ का। ओके, अगर कॉज पता रहेगा, फॉर एग्जाम्पल लाइक वी सेड दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, सो इफ क्योर इज, वी नो दैट व्हाट इज द क्योर, so we can treat the disease condition very easily. Okay, according to that we can move on to the next topic. Okay, so let's discuss about the next topic. Levels of prevention. We all know there are 3 levels of prevention, basic 3 levels of prevention: primary, secondary and tertiary. So let's discuss about primary prevention. In primary prevention, first of all, health promotion, specific protection. Okay, what is health promotion? Health promotion is defined as how can we promote our health very effectively, कैसे हम अपनी हेल्थ को और प्रमोट कर सकते हैं, कैसे अपन इफेक्टिवली उस हेल्थ को प्रमोट करके कैसे उसमें मैन्युफैक्चर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, जो भी प्रोटेक्शन है अपन उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रिवेंशन। ओके, सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस, सबसे पहले अपन को स्क्रीनिंग हुआ, ठीक है। प्राइमरी में अपन बचाव करेंगे, वो डिजीज़ कंडीशन अपन तक पहुँचे ही ना, हो ही नहीं, बट सेकेंडरी में वो डिजीज़ कंडीशन का अपन अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, मतलब पता चल जाए कि अपन को डिजीज़ कंडीशन हो चुकी है। ओके, नॉट अप टू द लेवल, अपन को फर्स्ट लेवल में ही पता चल जाए अपन को डिजीज़ कंडीशन हो रखी है, तो वो प्रॉपर स्क्रीनिंग करवानी, टेस्ट और केस फाइंडिंग कराना है, कितने केस फाइंडिंग है, और अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम्स है एडुकेट ट्रीटमेंट अपन ले पाए। एंड टर्चरी इज़ द फाइनल ट्रीटमेंट, फाइनल प्रिवेंशन है टर्चरी के अंदर, जब डिजीज़ कंडीशन हो चुकी है उसके बाद अपन क्या क्या उसके अंदर प्रिवेंशन कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट है डिसेबिलिटी लिमिटेड रिहेबिलिटेशन, सबसे पहले अपन रिहेबिलिटेशन में उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन के 4 टाइप्स दे रखे हैं: फंक्शनल रिहेबिलिटेशन, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, सोशल रिहेबिलिटेशन एंड द लास्ट वन इज साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ रिहेबिलिटेशन दैट वी कैन सेलेक्ट इन टर्चरी प्रिवेंशन। तो टर्चरी प्रिवेंशन में जब डिजीज कंडीशन हो चुकी है, ऐसी कंडीशंस होती है, फॉर एग्जाम्पल कैंसर। ओके, लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर इज कॉल्ड टर्चरी।
टर्शरी प्रिवेंशन देते हैं अपन कैंसर में, और कैंसर के अंदर टर्शरी प्रिवेंशन दे रहे हैं, तो कैंसर के अंदर अपन क्या करते हैं, जब लास्ट स्टेज चल रही होती है अपन रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजते हैं, क्योंकि वो डिजीज़ अब सही तो नहीं होगी, ओके, वो लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तो लास्ट स्टेज पे उसका क्योरेबल कोई भी क्योरिटी नहीं है, तो उसकी वजह से अपन कैंसर को एज अ कैंसर पेशेंट्स को अपन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भेजते हैं, ओके, फॉर द लाइफ स्पैन, अपन उसकी लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर सकें इसके लिए, okay, so these all are the levels of prevention. So let's move on to the next topic, epidemiological approaches. So there are many approaches in epidemiology. First, asking questions, okay, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ वी हैव टू आस्क द क्वेश्चंस कि डिजीज़ कंडीशन कब हुई, कितने टाइम पीरियड में हुई, कितनी बार हुई है और कैसे हुई है, वो सारे इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग कंपैरिजन, जैसे मैंने बताया कंपैरिजन और डेटा को कलेक्ट करके वो कंपेयर कर सके कि पहले कितना था और अब कितना, जो भी है डिजीज़ कंप्लीशन की कैसे, डिजीज़ क्योरिटी, ओके, डिजीज़ क्योरिटी इज मेन, कैसे कि पहले कैसी डिजीज़ हुई थी, अब कैसा है, तो अपन कंपेयर कर सकें कि पहले कितना इफेक्टिव था ट्रीटमेंट और अब कितना इफेक्टिव है, ठीक है, उसको देखकर अपन कंपैरिजन कर सकें। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी हैज़ बीन डिफाइन अ मीनिंग ऑफ लर्निंग फॉर आस्किंग क्वेश्चन एंड गेटिंग आंसर टू रिलेट ऑफ फ्यूचर क्वेश्चन, ओके, ताकि फ्यूचर उस पर भी क्वेश्चन ही उठ सके कि फ्यूचर के अंदर कितना कंसेप्ट है, कि फ्यूचर के अंदर भी चांसेस हैं क्या वो डिजीज़ कंडीशन के आके, जैसे कि लेटेस्ट अभी कोरोना वायरस चला, सो कोरोना वायरस के अंदर भी अपन देखें कि लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है वो सब कोरोना वायरस को ट्रीट कर रही हैं कि नहीं कर रही, तो उसके अंदर ये सब आता है, ओके। नेक्स्ट, लर्निंग एंड आस्किंग द क्वेश्चंस, ओके, क्वेश्चंस और उसका अपन देख सके कि क्या क्वेश्चंस है, क्या अपन उसको मेंटेन कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट, रिलेटेड टू हेल्थ इवेंट्स, क्या क्या इवेंट्स हैं, सबसे पहले अपन देखेंगे व्हाट इज़ द इवेंट, ओके, इवेंट है क्या बेसिकली। नेक्स्ट है वॉट डिड इट हैपन, कब हुआ, वेयर डिड इट हैपन, जैसे मैंने बताया था ये क्वेश्चंस पूछेंगे अपन, कब हुआ, वेयर डिड इट हैपन, हु आर दोज हु अफेक्टेड, कितने जने इफेक्ट हुए उससे, ठीक है, वाई डज इट अफेक्ट, इतना इफेक्ट ये क्यों हो रहा है, उसका मेन कॉज पता चले। नेक्स्ट है रिलेटेड टू द हेल्थ एक्शंस, क्या हेल्थ एक्शंस हैं उसके अपन क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस द प्रॉब्लम एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, क्या कर सकते हैं अपन उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट, हाउ कैन इट प्रिवेंट इन फ्यूचर, फ्यूचर में कैसे प्रिवेंट हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन बाय द कम्युनिटी, बाय द हेल्थ सर्विस एंड द अदर सेक्टर्स, तो क्या एक्शन लेना चाहिए एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स को क्या एक्शन लेना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है व्हाट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, क्या क्या रिसोर्सेज की लैकिंग है, जो लैकिंग हो रही है रिसोर्सेज की उसको ही मद्देनज़र रख के अपन देख सकते हैं कि क्या क्या लैकिंग हो रही है, उस लैकिंग को ही प्रिवेंट करके अपन वो चीज़ रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं वापस। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट वी आस्क। नेक्स्ट, मेकिंग कंपैरिजन, जैसे मैंने बताया कंपैरिजन मेक करना है, दिस अप्रोच इज मेक कंपैरिजन एंड ड्रॉ इंटरफ्रेंसेस, ओके, जो भी है इंटरफ्रेंसेस, उस इंटरफ्रेंसेस को देखकर वो कंपेयर कर सकें। नेक्स्ट है कंपैरिजन में बी मेड बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन, ओके, कंपैरिजन डिफरेंट पॉपुलेशन में देगा, अपन को रूरल में भी लेना है, अर्बन में भी लेना है, ठीक है, दोनों में अपन को पॉपुलेशन में कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट है बिटवीन सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, एग्जांपल मेल और फीमेल पॉपुलेशन का अलग बनाना है डेटा, कि मेल का अलग एंड फीमेल का अलग। देन बिटवीन वेरियस पीरियड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, एग्जाम्पल डिफरेंट सीजन्स, ओके, डिफरेंट सीजन्स मतलब जैसे कि कहते हैं अपन वायरल का कब दिखता है अपन को, ज़्यादातर रेनी सीजन में या ज़्यादातर अपन को विंटर्स में वायरल का इफेक्ट दिखता है, ओके। सो उसी तरह अपन उसका ऑब्जर्वेशन भी करें कि किस पीरियड में, ओके, किस सीजन में वो डिजीज़ कंडीशन कितनी स्प्रेड हो रही है, ओके। नेक्स्ट, टूल्स ऑफ मेजरमेंट, कैसे अपन मेज़र कर सकते हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेज़र द रेट, अपन रेट से मेज़र करेंगे कितने लोग इफेक्ट हुए, रेशियो से मेज़र करेंगे, ओके। देन प्रपोर्शन, अपन प्रपोर्शन से मेज़र करेंगे। द फर्स्ट वन इज हिडन आई थिंक इन मेजरमेंट, द फर्स्ट पॉइंट इज रेट्स, okay, first point is rates, second is ratio and third is proportions. So first we discuss about rate. A rate measures the occurrence of some particular event, development of disease or occurrence of death in the population during given period of time, okay। रेट में अपन ये पता करेंगे कि रेट अपन मेज़र करेंगे एक पर्टिकुलर इवेंट के बाद, ठीक है, कितने पॉपुलेशन ऑफ पीरियड पे और कितने पीपल्स को वो अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेथ इन 1 ईयर, ओके, ये फॉर्मूला था। डेथ
rate equals to into 1000 mid-year population. तो दिस इज द फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट द रेट्स. नेक्स्ट इज क्रूड रेट्स. ओके, जो रेट्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट में डिवाइड्स हैं, अपन देख लेते हैं. फर्स्ट है क्रूड रेट्स. ओके, सो व्हाट इज क्रूड रेट्स? दिस आर द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन रेट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ. जो बर्थ और डेथ के बीच की रेट है उसको अपन क्रूड रेट कहते हैं. क्रूड रेट ऑल्सो नोन एज अनस्टैंडर्डाइज्ड रेट्स. इसको अपन अनस्टैंडर्डाइज्ड रेट्स भी बोलते हैं. ओके, इसको अनस्टैंडर्डाइज्ड रेट बोलते हैं बिकॉज देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट द रेट इज गोइंग ऑन. ओके, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक रेट्स. स्पेसिफिक रेट्स हैं जो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन के लिए ही होती है. ओके, एक मान लो जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस है. ओके, ट्यूबरकुलोसिस पे अपन को देखना है तो अपन पर्टिकुलर ट्यूबरकुलोसिस के लिए अपन वो रेट्स को मेजर करेंगे. नेक्स्ट है स्पेसिफिक रेट्स में देख लेते हैं. दीज आर द एक्चुअल ऑब्जर्वेशनल रेट्स ड्यू टू स्पेसिफिक कॉजेज. फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस और अकरेंस इन स्पेसिफिक ग्रुप. एग्जाम्पल एज, सेक्स ग्रुप्स. ओके, और ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड. और ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड में देखते हैं जैसे एनुअली, वीकली, मंथली. ओके, एंड या सीजनेबली अपन उस सीजन में ही देखेंगे वो स्पेसिफिक रेट्स. नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइज रेट्स. दीज आर ऑब्टेन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स बाय एडजस्टिंग. फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्डाइज रेट्स में अपन पर्टिकुलर एज ग्रुप का ही लेंगे या पर्टिकुलर मेल का ही लेंगे या पर्टिकुलर फीमेल का ही लेंगे. मान लो फीमेल को ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है डिजीज कंडीशन तो अपन फीमेल का रिकॉर्ड लेंगे. सो दीज आर द रेट्स. Next is ratio. Another measurement of disease frequency is a ratio. It is express a relationship and a size between two random qualities. Example includes first the number of children with malnutrition at a certain time. Second, sex ratio doctor population ratio child women's ratio etc. ओके, तो अपन रेशियो निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ चाइल्ड माल न्यूट्रिशन है उस करंट टाइम पे. और सेकंड है कितने सेक्स रेशियो है, डॉक्टर्स पॉपुलेशन कितनी है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द वेलफेयर. तो अपन रेशियो निकालेंगे ओवरऑल कितने इफेक्ट हो रहे हैं और किस रेशियो में कितना है अपन वो चीज़ इसमें देखेंगे. नेक्स्ट है प्रपोर्शन. नेक्स्ट अपन प्रपोर्शन देखेंगे, ये भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से है. अ प्रपोर्शन इज अ रेशियो विच इंडिकेट्स द रिलेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ पार्ट ऑफ होल. ओके, टू डिटर्मिन अ प्रपोर्शन यूजुअली एक्सप्रेसेस परसेंटेज. जो प्रपोर्शन है वो यूजुअली परसेंटेज के फॉर्म में अपन को दिखेगी. ओके, द नंबर ऑफ चाइल्ड विथ स्केबीज एट अ सर्टेन टाइम. फॉर एग्जाम्पल स्केबीज का दे रखा है तो स्केबीज से कितने नंबर ऑफ चाइल्ड इफेक्टेड हैं. फॉर एग्जाम्पल इसका दे रखा है फॉर्मूला द टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड इन द विलेज एट द सेम टाइम. कितने सेम टाइम पे है पॉपुलेशन में इंटू 100. अपन पहले देखेंगे द नंबर ऑफ चाइल्ड विथ स्केबीज एट सर्टेन टाइम. उस सर्टेन टाइम पे कितने नंबर ऑफ स्केबीज के बेबीज अफेक्ट हैं. ओके, जितने स्केबीज के अफेक्ट हैं अपॉन अपन को टोटल चिल्ड्रन लिखने जितने उस विलेज एरिया में जितने उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में है इंटू 100 कर देना है, अपन को प्रपोर्शन मिल जाएगा. ओके, एंड द प्रपोर्शन इज इन द रेशियो फॉर्म. नेक्स्ट मोर्टेलिटी. ओके, सो व्हाट इज़ मोर्टेलिटी? द अकरेंस ऑफ डेथ इन पॉपुलेशन. कितनी डेथ हुई है उस ओवरऑल पॉपुलेशन में उसको अपन मोर्टेलिटी कहते हैं. मोर्टेलिटी डेटा आर रिलेटिवली ईजी टू ऑब्टेन. बहुत ईजीली अपन को ये डेटा मिल जाता है एंड इन मैनी कंट्रीज रीजनेबली एक्यूरेट. मैनी कंट्रीज हैव रूटीन सिस्टम फॉर कलेक्टिंग मोर्टेलिटी रेट ऑफ द. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे रेगुलरली अपन चेक करते हैं कितनी डेथ हुई है तो अपन रेगुलरली उस डेटा को अपने पास रखते हैं. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में मोर्टेलिटी रेट को रोज़ मेज़र करती हैं, एनालाइज करती है गवर्नमेंट्स की कितनी डेथ हुई है उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर कंट्री में कितनी पॉपुलेशन में से कितनी डेथ हुई है. ओके, नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ मोर्टेलिटी डेटा. क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती है मोर्टेलिटी डेटा की? फर्स्ट, इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग ऑफ डेथ. ओके, डेथ को क्या है इनकम्प्लीट रिपोर्ट करा है. नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्यूरेसी. एक्यूरेसी प्रॉपरली नहीं है, जो भी डेथ है उसमें या कुछ ना कुछ एरर्स आ रहे हैं. नेक्स्ट है लैक ऑफ इन्फॉर्मिटी. इन्फॉर्मिटी ढंग से नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है. ठीक है, कभी डेटा दिया है, कभी डेटा लिया, कभी नहीं लिया. ओके, इन्फॉर्मिटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है. नेक्स्ट है चेंजिंग. चेंजिंग मतलब वो अकॉर्डिंग टू दैट डायग्नोसिस, अकॉर्डिंग टू दैट क्राइटेरिया वो चेंज होता जा रहा है डेटा बार बार. एंड द लास्ट पॉइंट इज डिजीज एंड लो फर्टिलिटी. जो भी डिजीज़ है वो लो फर्टिलिटी में आ रही है. द डिजीज इज एसोसिएटेड विद लो फर्टिलिटी. फॉर एग्जांपल मेंटल डिजीज़ है या अर्थराइटिस है. ओके, वो डिजीज़ के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट मोर्टेलिटी रेट्स एंड रेशियो.
क्या मोर्टेलिटी रेट है उसका रेशियो क्या है। फर्स्ट है क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट का फॉर्मूला है द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ मोर्टेलिटी रेट इज क्रूड डेथ। ओके, सो ये सबसे सिंपल तरीका है मोर्टेलिटी का क्रूड डेथ रेट का। ठीक है, क्रूड डेथ रेट का सबसे सिंपल और आसान तरीका है अपन क्रूड डेथ रेट से फाइंड आउट कर सकते हैं मोर्टेलिटी रेट को। ओके, सो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग दैट ईयर, कितने नंबर ऑफ डेथ हुए उस ईयर में। ओके, इनटू 1000 कर देना है मिड ईयर पॉपुलेशन में, अपन को क्रूड डेथ रेट का पता चल जाएगा। नेक्स्ट है स्पेसिफिक डेथ रेट्स। ओके, स्पेसिफिक डेथ रेट है मतलब कोई भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन से वो पेशेंट की डेथ हुई है या उस पर्सन की डेथ हुई है तो अपन उसमें एनालाइज करते हैं। When analyzing is planned to through light and etiology, it is essential to use specific डेथ रेट्स। ओके, स्पेसिफिक डेथ रेट्स होती है जैसे स्पेसिफिक डिजीज़ कंडीशन होती है, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर और कोई भी एक्सीडेंट हो। सेकंड रिलेटेड टू कोई भी एज हो, स्पेसिफिक एज हो या कोई भी स्पेसिफिक रेशियो हो, वो चीज़। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट केस फर्टिलिटी रेट। ओके, केस फर्टिलिटी रेट का रेशियो है केस फर्टिलिटी रेट रिप्रेजेंट्स द किलिंग पावर ऑफ अ डिजीज़। ओके, केस फर्टिलिटी रेट में अपन देखते हैं कि कितना किलिंग पावर हो रखा है उस पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन का उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में। इट इज़ सिंपली द रेशियो ऑफ डेथ टू केसेस, द टाइम इंटरवल इज़ नॉट स्पेसिफिक, जिसके अंदर इसमें टाइम इंटरवल कोई भी स्पेसिफिक नहीं दे रखा है। ओके, कोई भी स्पेसिफिक टाइम डिटेल नहीं दे रखा है। नेक्स्ट है केस फर्टिलिटी रेट एंड टिपिकली यूज एक्चुअल इन्फेक्शस, जो भी इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर फूड पॉइजनिंग से मरा है, कोलेरा या मीजल से मरा है तो वो सब इसके अंदर आते हैं। इसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से कितने की डेथ हुई है अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस ड्यू टू सेम डिजीज़। ओके, सेम डिजीज़ से कितने की डेथ हुई है इंटू 100। नेक्स्ट प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट रेशियो। प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट में है फर्स्ट में इफ़ इट इज़ सम टाइम यूजुअली टू नो द प्रोपोर्शनल टोटल डेथ आर ड्यू टू पर्टिकुलर कॉजेज। फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर कॉज की वजह से लाइक कैंसर की वजह से हो रहा है तो वो इसके अंदर आएगा। और व्हाट प्रपोर्शन ऑफ डेथ आर अकर इन पर्टिकुलर एज ग्रुप, अगर पर्टिकुलर एज ग्रुप की वजह से हो रहा है, मान लो 50 ईयर्स का है या उसको कोई एज क्राइटेरिया है कि 50 ईयर्स में उसकी एज ग्रुप क्राइटेरिया इतना ही है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ओल्ड एज में, तो वो उसकी भी डेथ हो सकती है। द नेक्स्ट इज प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट एक्सप्रेस द नंबर ऑफ डेथ रेट पर्टिकुलर एरिया में। ओके, सो अपन 1000 इंटू 10,000 1000 और 100 जितना भी अपना एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के अकॉर्डिंग वी हैव टू कैलकुलेट। नेक्स्ट प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी फ्रॉम अ स्पेसिफिक डिजीज़। जो क्या प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी स्पेसिफिक डिजीज़ का फॉर्मूला है यू कैन सी नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम द स्पेसिफिक डिजीज़ इन अ ईयर, कितनी नंबर ऑफ डेथ हुई है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से उस ईयर में, अपॉन टोटल डेथ फ्रॉम ऑल कॉजेज इन द ईयर, टोटल कितनी डेथ हुई है उस पर्टिकुलर कॉज की वजह से उस ईयर में इंटू 100, so we can get proportional mortality from a specific disease. Next, so there are some more formulas. You can see that under 5 proportional mortality rate, अगर 5 proportional mortality rate का निकालना है तो number of death under 5 year of age given year upon total number of death during the same period into 100. Then the third point is proportional mortality rate for age 50 years above. Then the formula is number of death at persons age 50 years above, अगर 50 ईयर्स से अबव आ रहा है तो उसके अंदर अपन ये फॉर्मूला डालेंगे अपॉन टोटल कितनी डेथ हुई उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में इंटू 100. ओके, देयर आर सम फॉर्मूलाज यू कैन सी दैट. Next, survival rate. Okay, survival rate, it is a proportional of survivors in that age group. मतलब इस एज ग्रुप में कितने सर्वाइवर्स हैं. ओके, वो अपन पता करेंगे इससे. एग्जाम्पल ऑफ द पेशेंट स्टडी फॉलोइंग टारगेट. एग्जाम्पल दे रखा है कि कितना जैसे मान लो कैंसर है, उसका सेकेंड या थर्ड स्टेज है बट उसने सर्वाइव कर लिया उस चीज़ से, तो कितने सर्वाइवल रेट निकालने का फॉर्मूला है. यू कैन सी दैट सर्वाइवल रेट इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अलाइव आफ्टर 5 ईयर्स. आफ्टर 5 ईयर्स कितने पेशेंट्स अलाइव हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेशेंट डायग्नोस ऑफ ट्रीटमेंट, कितने डायग्नोस हुए कितने ट्रीट हुए इंटू 100. अपन को सर्वाइवल रेट पता चल जाएगी फ्रॉम दिस फॉर्मूला. नेक्स्ट,
मोबिडिटी रेट। ओके, मोबिडिटी रेट है द अकरेंस ऑफ अ डिजीज़ और इलनेस इन दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितनी इलनेस हो रही है, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितनी डेथ हो रही है। ओके, मोबिडिटी हैज़ बीन डिफाइंड एज डेप्चर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल वेल बींग। द टर्म इज यूज टू इक्वलेंट टू सच टर्म सिकनेस, जैसे इसको सिकनेस टर्म भी दे सकते हैं, इलनेस और डिसेबिलिटी टर्म भी दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO कम्युनिटी, WHO, ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कमिटी ने हेल्थ स्टैटिस्टिक्स से 6th रिपोर्ट में ये बोला है कि 3 यूनिट से अपन ये चेक कर सकते हैं। देयर आर 3 यूनिट दैट वी हैव टू चेक दिस। what is morbidity rate? Morbidity rate अपन 3 यूनिट से वी कैन फाइंड आउट। फर्स्ट है पर्सन हु कैन इल, जो पर्सन है वो इल है। नेक्स्ट है द इलनेस पीरियड, कितनी इलनेस पीरियड हुई, कितनी एक्सपीरियंस हुए उससे। एंड द लास्ट वन इज द ड्यूरेशन, कितने वीक्स में हुई, कितने डेज में हुई और कितने टाइम पीरियड में हुई है। ओके, नेक्स्ट इंसिडेंस। इंसिडेंट रेट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यू केसेस, जो भी न्यू केसेस आ रहे हैं, ओके, उनका नंबर क्या है। डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में क्या इंसिडेंट है उस डिजीज़ कंडीशन का। उसके लिए अपन एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इंसिडेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़ ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। ओके, टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस क्या है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज़ के उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के, ओके, अपॉन पॉपुलेशन कितने हाई रिस्क पे उस टाइम पे इंटू 1000। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे हैव बीन 500 केसेस, मान लो 500 केसेस मिल रहे हैं न्यूली शोल्ड, देन पॉपुलेशन कितनी होगी 30,000 इन ईयर इंसिडेंट्स। ओके, यू कैन सी इन दैट एरिया कि कितनी पॉपुलेशन में कितना अपन को देखना है। नेक्स्ट प्रिविलेंस, द टर्म डिजीज प्रिविलेंस रेफर्स स्पेसिफिकली टू ऑल करंट केसेस। ओके, प्रिविलेंस मतलब ये है कि कितनी कितनी डिजीज कंडीशन वापस अराइज हो रही है, ठीक है, वापस आ रही है डिजीज कंडीशन, ठीक है। सो स्पेसिफिकली ऑल करंट केसेस मतलब ओल्ड और न्यू को मिला के कितने करंट केसेस अब तक हैं, ठीक है, उसको अपन प्रिविलेंस कहेंगे। एग्जिस्ट एट गिवन पॉइंट एट टाइम, अभी तक के जितने केसेस आ रहे हैं, ठीक है, करंट केसेस में भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, करंट केसेस भी प्रिविलेंस में इन्वॉल्व होंगे। और अदर पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन, फर्स्ट है पॉइंट प्रिविलेंस, पीरियड प्रिविलेंस एंड, ठीक है, देयर आर 2 प्रिविलेंसेस दे रखे हैं अपन को, पॉइंट प्रिविलेंस और पीरियड prevalence. So first we discuss about point prevalence. Point prevalence of a disease is defined as the number of current cases, जो भी current cases हैं old and new of a disease one point of time in relationship with उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितने केसेस आ रहे हैं, वो है पॉइंट प्रिवलेंस। पॉइंट प्रिवलेंस का फॉर्मूला यू कैन सी नंबर ऑफ ऑल करंट केसेस जो भी ओल्ड और न्यू है इनटू स्पेसिफिक डिजीज एग्जिस्ट को, जो भी स्पेसिफिक डिजीज़ है जो एग्जिस्ट हो रही, अपॉन एस्टिमेट पॉपुलेशन क्या है उस टाइम पीरियड पे इंटू 100, कितनी एस्टिमेट पॉपुलेशन है उससे अपन को न्यू और ओल्ड का पता करके इंटू 100 कर देना, अपन को पॉइंट प्रिवलेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट है पीरियड प्रिवलेंस। ओके, अ लेस कॉमनली यूज मेजर ऑफ प्रिवलेंस इज पीरियड प्रिवलेंस। ओके, पीरियड प्रिवलेंस में अपन देखेंगे लेस कॉमन ये यूज़ होता है, इट मेजर्स फ्रीक्वेंटली ऑफ ऑल करंट केसेस, में सारे के सारे करंट केसेस आ जाएंगे उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जितने भी आ रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एनुअल प्रिवलेंस। ओके, एनुअल प्रिवलेंस कितना आएगा वो उसमें अपन देख लेंगे। एक्सप्रेसिव इन रिलेशनशिप टू डिफाइन पॉपुलेशन केसेस ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस ओल्ड और न्यू एट स्पेसिफिक टाइम पीरियड at a particular time period upon estimate mid interval population into 100. So this is the formula of period prevalence. Next है method of epidemiological studies. Okay, कैसे अपन epidemiological studies के methods को देख सकते हैं। epidemiological employ different methods हैं जैसे कि descriptive, analytic and experimental method. So 3 method अपन पढ़ेंगे epidemiology में, descriptive, analytic and the last one is experimental. So first discuss about descriptive method. So descriptive method of epidemiology study is considered with a study to frequency and distribution of disease and health related event in population in term of a person of place. So in descriptive we can see that descriptive method में जो भी epidemiological study में अपन ने पढ़ा, जो भी study है उसकी frequency, कोई disease condition की frequency distribution है जो अपन ने previous slide में देखा, वो सेम चीज़ इसमें आती है कि कितनी अपन ने चीज़ें देखी है फ्रीक्वेंसी को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर उस पर्टिकुलर हेल्थ से रिलेटेड। एंड
पॉपुलेशन और टर्म में, उस पर्टिकुलर टाइम में, उस पर्टिकुलर प्लेस में, ठीक है, इसमें टाइम और प्लेस भी इंक्लूड है। नेक्स्ट पैरा, दिस मेथड गिव द इंफॉर्मेटिव अबाउट विच आर द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन डिजीज, कितनी उस पॉपुलेशन डिजीज कंडीशन से कितने इफेक्टिव हुए हैं और कितने इवेंट्स हैं जो कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एंड द डेटा इज कलेक्टिंग अबाउट, जो भी डेटा अपन ने कलेक्ट करा है डिस्क्रिप्टिव वे में, जो डेटा है वो डिस्क्रिप्टिव मेथड से अपन को पूरा कलेक्ट करना है, पूरा डिस्क्रिप्शन से कि कब हो ये डिजीज कंडीशन अकर हुई, किस टाइम पे हुई, किस पीरियड ऑफ टाइम पे हुई, कितने लंबे समय तक चली। सो दिस ऑल आर केम इन द डिस्क्रिप्टिव मेथड। नेक्स्ट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मैंने बताया इसमें अपन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेंगे, एज, सेक्स, रेस, मटर्नल स्टेटस, मैरिड था कि नहीं, ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, इनकम क्या है, क्लास क्या है, डाइट्रिक पैटर्न क्या है, हैबिट्स क्या है। तो अपन ये सब डिटेल्स मिलेंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में जहाँ डिजीज कंडीशन हो रही है। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेस, ठीक है, प्लेस अपन पता करेंगे कहाँ हाई कंसनट्रेशन, लो कंसनट्रेशन अपन मैपिंग में देखेंगे। मान लो वो हाई पर्टिकुलर हाई प्लेसेस में रहता है, मान लो हिली एरियाज़ में रहता है, तो उसका अकॉर्डिंग अपन वैसे ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है टाइम, अपन इम्पॉर्टेंट है टाइम, उस टाइम ऑफ पीरियड में अपन सीज़न पता करेंगे। जैसे मैंने बताया कि जैसे वायरसेस होते हैं वो यूजुअली रेनी सीजन्स और विंटर सीजन्स में अपीयर होते हैं। सो अपन उस पर्टिकुलर टाइम और सीज़न का देखेंगे, कितने मंथ पहले हुआ था, कितने वीक पहले, और पर्टिकुलर सीज़न क्या है उसका। नेक्स्ट, सच इन्फॉर्मेटिव गिव क्लू टू पॉसिबल ऑफ फैक्टर्स इज, तो ये सारी चीज़ें हैं डिस्क्रिप्टिव फैक्टर्स से अपन को क्लू मिल जाएगा कि उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में हुई थी वो डिजीज़ कंडीशन और उस पर्टिकुलर कितने टाइम पीरियड में हुई थी। फॉर एग्जांपल मीजल्स है, डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में अपन को देखने को मिलता है। अपन ने देखा है ना कि मीजल्स वगैरह हैं अपन को पर्टिकुलर चाइल्डहुड में ही ये सारी मीजल्स हो जाती है, वैसे अभी भी होती है बट अधिकतर अपन कहते हैं कि मीजल्स जो है, मीजल्स और डिप्थीरिया ये अपन को चाइल्डहुड में हो जाती है क्योंकि अपनी इम्यूनिटी उसकी कैपेबल हो जाती है। तो अपन उसकी इम्यूनिटी को देखकर अपन देखते हैं कि कितने उस टाइम पे अपन को केसेस देखने को मिले, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में है तो वो सब उसके अंडर आएंगे। नेक्स्ट है कैंसर इन मिडिल एज, कैंसर क्या है उस मिडिल एज में अपन देखेंगे कितनी मिडिल एज में वो कैंसर अगर अकर हो रहा है। अथीरोस्क्लेरोसिस है, अथीरोस्क्लेरोसिस अपन देखते हैं कि अथीरोस्क्लेरोसिस कब होता है, किस पर्टिकुलर एज ग्रुप में होता है। मान लो कि अगर फैटी सब्सटेंसेस ज़्यादा ले, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल से हो सकता है, ओल्ड एज में अपन को अथीरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इन सब डेटा से अपन क्या एक्यूरेट परसेंटेज निकाल सकते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड से, अपन को ये पता लग जाएगा कि इस पर्सन को इस चीज़ से क्या मतलब कैसी डिजीज़ कंडीशन अकर हो रही है। तो सारा अपन मैटर जो भी अपन डेटा लेंगे वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लेंगे। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शन स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में अपन स्टडी करेंगे, ओके, क्रॉस सेक्शनल स्टडी जैसे अपन रिसर्च में भी पढ़ते हैं, देयर आर मैनी स्टडीज, सो दिस इज द वन टाइप ऑफ स्टडी दैट इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी। सो इन दिस डिज़ाइन ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेथड की स्टडी है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अपन ये देख लेते हैं, द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द क्रॉस सेक्शनल पॉपुलेशन एट द वन पॉइंट इन टाइम, ओके, एक ही पीरियड ऑफ टाइम पे, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन वो डेटा कलेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में। द रिजल्ट ऑफ द स्टडीज अप्लाई टू द पॉपुलेशन, वो रिजल्ट अपन पॉपुलेशन में अप्लाई करेंगे। जो क्रॉस सेक्शनल पॉपुलेशन है उसका अपन सैंपल लेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे होल पॉपुलेशन में, कितना पॉपुलेशन में वो रिप्रेजेंट हो रहा है कि नहीं हो पा रहा, ओके। You can see in last line it is example that it is also called as prevalence study, अपन इसको prevalence study भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अपन prevalence studies को? Because it is an example of study डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। मान लो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, उस पीरियड ऑफ टाइम पे prevalence study अपन उस डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन पेशेंट्स की कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो कि अपन देखते हैं ना डायबिटीज़ और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को, अपन उनकी क्या लेते हैं, लाइफस्टाइल स्टडीज़ लेते हैं कि आप ना स्मोकिंग तो नहीं करते हो, कि स्मोकिंग वगैरह डेटा से अपन को ये पता लग जाएगा कि इसको हाइपरटेंशन प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ये सारे कॉजेज़ हैं उस पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन के, ओके। सो क्रॉस सेक्शन स्टडीज़ में अपन को ये डेटा कलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। सो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी आर द स्टडी यूजफुल फॉर स्टडिंग नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, जो भी नेचुरल डिजीज़ कंडीशन हो रही है उसका अपन को पता लगेगा इसमें, फाइंडिंग आउट इंसिडेंट रेट डिजीज़ एंड आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीज़। जो भी रिस्क फैक्टर है वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में अपन फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि रिस्क फैक्टर पता लग गए तो डिजीज़ कंडीशन नहीं होगी। वैसे ही अपन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में ये सब फाइंड आउट कर लेते हैं। द लास्ट पॉइंट इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी आर मोर एक्सपेंसिव, ओके। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इसलिए नहीं करते क्रॉस सेक्शनल को प्रेफरेंस
इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा देती है बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ जो हैं वो बहुत टाइम लेती है, प्लस टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। ओके, इसको बहुत टाइम लगता है करने में क्योंकि इसकी स्टडी जो है वो प्रोग्रेसिव वे से नहीं होती, बहुत टाइम पीरियड ऑफ टाइम टेकन है। ओके, नेक्स्ट है एनालिटिक मेथड। सो यू कैन लर्न द डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड जैसा ही है एनालिटिक मेथड, बट इसके अंदर अपन एनालाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें लिखा है एग्जाम्पल, सिगरेट स्मोकिंग 10 to 20 इन अ डे। मान लो 10 या 20 एक पर्सन स्मोक कर रहा है 10 to 20 इन अ पर्टिकुलर डे, कॉजिंग लंग कैंसर। ओके, लंग कैंसर हो, अगर मान लो एक सिगरेट वो पी रहा है, रोज़ की एक पी रहा है, तो उसको ज़रूरी नहीं लंग कैंसर हो जाए। ओके, अगर वो मान लो एस्टिमेट करके मानो अगर 10 to 20 पैकेट्स वो अगर डेली लेता है तो ही और शी कैन गेट लंग कैंसर। अब प्रीवियसली स्टडी की गई थी इन 10 to 15% स्मोकर 20 ईयर ऑफ एक्सपोजर। इसमें ये बता रखा है कि प्रीवियस एक्सपोजर में तो ये बताया था कि 20 ईयर्स ऑफ एक्सपोजर में जो बैटलिंग हुई थी, जो ओरिजिन जो हुआ था इसका, जिसने ओरिजिन करा था उससे ये बेनिफिट नहीं हुआ। तो ये स्टडी में एरर्स आ सकते हैं। सो वी कैन सी दैट दीज टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस होते हैं जो कि अपन रिसर्च में पढ़ते हैं, अजम्पशन एंड हाइपोथेसिस। ओके, सो ये जो हाइपोथेसिस थी जो कि अपन को बाद में प्रूव करनी थी, ओके, कि कैसे कि इतने स्मोकर्स हैं, कितना स्मोक करके उसको लंग कैंसर हो सकता है। तो ये सारे एनालिटिक स्टडी है कि ये एनालिटिक फॉर्म में कि कैसे उसको अपन एनालाइज फॉर्म में कर सकें। नेक्स्ट है केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी में क्या है, इन दिस मेथड ऑफ ग्रुप पीपल हैव बीन डायग्नोज फॉर हैविंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मान लो किसी को पर्टिकुलर केस, क्यों बोला है अपन ने, पर्टिकुलर केस को डिटरमाइन करके बोला है। मान लो उसको अगर लंग कैंसर है तो अपन उस पर्टिकुलर लंग कैंसर का इसको ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें लंग कैंसर का ही दे रखा है, देखो एग्जाम्पल, लंग कैंसर केसेस को अपन कंपेयर करेंगे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर कि प्रीवियस जो लंग कैंसर है और लंग कैंसर का प्रीवियस एक्सपोजर कितना हुआ था उस पेशेंट को, उसका कितना कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ था, उसको कंपेयर करेंगे उस केसेस को, और अपन उसका केसेस का कितना कंट्रोल हुआ है अपन ये भी देखेंगे कि कितना कंट्रोल हुआ है इस केस स्टडी में। इसलिए अपन ने इसको नाम दिया है, जो भी साइंटिस्ट है, केस कंट्रोल स्टडी। कितना केसेस हैं जो कंट्रोल हुए हैं, ठीक है, जो ठीक हुए हैं उस स्टडी से। नेक्स्ट है कोहेरेंट स्टडी। कोहेरेंट स्टडी में अ कोहेरेंट इज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। ये ओनली स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल पे करते हैं स्टडी, स्पेसिफिक टाइम पे करते हैं, शेयरिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल दे रखा है इसमें, पीपल बोर्न ऑन द सेम डे सेम ईयर। ओके, अगर कोई पीपल सेम डे सेम ईयर में बॉर्न हो रहा है, जैसे कपल मैरिज है, इन द सेम ईयर कपल मैरिज कितनी हो रही है। कोहेरेंट मीन्स सिमिलैरिटी। कोहेरेंट जहाँ वर्ड आ जाता है वहाँ अपन बोल सकते हैं कि सिमिलैरिटीज़। अ क्लास ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, मान लो अपन नर्सिंग स्टूडेंट्स पे करें तो अपन को सारी स्टडी उन पे ही करनी पड़ेगी। ऑक्यूपेशनल कोहेरेंट मतलब अपन ऑक्यूपेशनल कोई ऑक्यूपेशन पर्सन पे करें, कोई जॉब वॉब करता है, मान लो फैक्ट्रीज में आता है, उन पे करें तो उसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में उसी पर्टिकुलर सेम एरिया में ही होगी। नेक्स्ट है, इसके अंदर दो टाइप्स की आती है, प्रोस्पेक्टिव कोहेरेंट स्टडी एंड रिट्रोस्पेक्टिव कोहेरेंट स्टडी। सो फर्स्ट वी रीड अबाउट प्रोस्पेक्टिव कोहेरेंट स्टडी। सो इन दिस कोहेरेंट स्टडी इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। ओके, ये प्रोस्पेक्टिव होती है नेचर से बिकॉज द ग्रुप अंडर द स्टडी इज फ्री फ्रॉम द डिजीज एक्सपोजर। इसके अंदर जो है ना ग्रुप है वो फ्री है, डिजीज़ नहीं है उनको, ठीक है, वो कोई रिस्क फैक्टर में एक्सपोज भी नहीं हुए हैं। ओके, वो प्रोस्पेक्टिव में आ रहे हैं, ठीक है, जो केवल वो जानते हैं, जैसे एग्जांपल दे रखा है, कंडीशन ओवर द टाइम, फॉर एग्जांपल लंग कैंसर, ठीक है, रिस्क फैक्टर में आ चुके हैं, नहीं आए और एक्सपोज नहीं हुए हैं पर्टिकुलरली। नेक्स्ट है रिट्रोस्पेक्टिव कोहेरेंट स्टडी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिस्टोरिकल कोर्स स्टडी। ओके, इसको हिस्टोरिकल भी नाम दिया है। इन दिस टाइम ऑफ स्टडी इज डिजाइन इवेंट एट ऑलरेडी अकर, इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। ओके, फर्स्ट वाले में अपन ने देखा था कि कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी रिस्क फैक्टर्स क्या है, एक्सपोज नहीं हुए उसमें, बट फिर भी उसको डिजीज कंडीशन वो अकर हो गई है बाद में। बट रिट्रोस्पेक्टिव में क्या हो रहा है, रिट्रोस्पेक्टिव में ऑलरेडी अकर हो चुके हैं वो सारे सिम्टम्स के साथ, सारे रिस्क फैक्टर्स के साथ। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल मैथड्स। ओके, एक्सपेरिमेंटल मैथड जो हैं वो सेम इसमें दे रखा है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड सिमिलर टू अप्रोच कोहेरेंट स्टडी। कोहेरेंट स्टडी की तरह ही सिमिलर है ये भी, एक्सेप्ट द कंडीशन अंडर द केयरफुल कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटर। बट इसके अंदर अपन को क्या करना है, जो भी चीज़ है
जो भी अपन ले रहे हैं वो सबको बाद में अपन को एक्सपेरिमेंट करना है। ओके, सेकंड पॉइंट, एक्सपेरिमेंटल मेथड आर डन टू कंफर्म द इटियोलॉजी केस। एक्सपेरिमेंटल मेथड में अपन को पूरा एक्सपेरिमेंट करके वो डेटा को मॉडिफाई करके आगे अपन को पहुंचाना है कि वो कितना स्टडी इफेक्टिव हुई और नहीं हुई। नेक्स्ट है, दी स्टडी इज डन अंडर कंट्रोल कंडीशन, बट ये जो भी स्टडी है वो कंट्रोल कंडीशन से होनी चाहिए। देन लास्ट पॉइंट इज द इन्वेस्टिगेटर एडमिनिस्टर इन्वेस्टिगेशन जो भी हो रही है उस एक्सपेरिमेंटल स्टडी पे वो प्रॉपर क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो उसका। अपन ऐसे नहीं कि अपन कोई भी अपन स्टडी करें उसका बाद में इम्प्रूवमेंट ना निकले, चाहे वो रिजल्ट पॉजिटिव हो नेगेटिव, अपन को उसको फीडबैक में देना ही देना है। ओके, तो ये स्टडी में अपन को ये देखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच, होप यू लाइक माई टॉपिक, थैंक यू।